Now, in today's lecture, in today's topic, this is a continuation of the last lecture in which we have discussed basically what is an IAS exam, what are the prerequisite conditions basically, or we can say what is the eligibility that has been set up by UPSC or JKPSC for the KS exam, and what are the certain other things and parameters basically that have been set by the concerned commissions. Now, आज के लेक्चर में we'll talk about the second stage of the examination. In the last lecture we talked about the prelims examination and the structure of the examination, what are the major subjects or the components that we have to study to qualify this preliminary examination, which is the first stage of the examination in which huge number of applicants apply and sit in the examination. Now what happens after the declaration of the preliminary examination? Now so many of the students are excluded for the examination. Now this exclusion is very important because ultimately you have to select only the top layer and the cream for the, we can say the top cream for the IAS examination, or those candidates which have really potential, which are really, we can say, the capability to serve the administration or to serve the nation. Now in the mains examination, we'll discuss what is the structure of the examination and what approach we should use to qualify this mains examination. Now suppose there are almost 5 lakh students. Now mains syllabus and approach. Now suppose 5 lakh students appeared in the preliminary examinations, and let's take for example 50,000 students. 50,000 students now have been selected for the mains examinations. अब ये जो 50,000 students है, they will be screened in a subjective paper, or we can say जो ये mains examination है, this exam is basically conducted in a descriptive manner or in the subjective manner. यानी कि इस पेपर में अब इस स्टेज पे अब सिर्फ दो पेपर्स नहीं होंगे. इस स्टेज में बेसिकली देयर आर 9 पेपर्स विच यू हैव टू गिव, एंड ये जो 9 पेपर होंगे ये पूरे हफ्ता या 1.5 हफ्ता चलेगा. नाउ व्हाट आर दोज 9 पेपर्स, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट आर द जीएस, व्हाट इज द एसे पेपर, व्हाट इज द लैंग्वेज पेपर, विल टॉक अबाउट दिस थिंग नाउ. सो if we simply have to see what are the papers in this examination, if we talk about now this means this is totally subjective. अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको एग्जामिनर आपसे पेपर क्वेश्चन पूछेगा, बट दिस क्वेश्चंस यू हैव टू राइट द आंसर्स फॉर दोस क्वेश्चंस. नाउ रिमेंबर दिस इज अ यूपीएससी एग्जाम. यहां पे जस्ट फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स लिखना नहीं होता है. तो यहां पे क्या अप्रोच स्ट्रेटजी यूज करनी है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट पेपर्स. इफ वी सी दिस इज अ सब्जेक्टिव और दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, एंड बेसिकली दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर्स. जो पहले 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं, दे आर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि आपको ये बस क्वालिफाई करने हैं. जो ये पेपर ए और पेपर बी, दिस क्वालिफाइंग कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, पेपर ए प्लस पेपर बी. अब ये दोनों जो पेपर ए और पेपर बी होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही समझिए जहां पे सीसैट होता था, वैसे ही यहां पे ये दोनों आपको बस क्वालिफाई करने होते हैं. इनमें आपको 25% से ऊपर आपने स्कोर कर लिया तो बेटा यू आर क्वालिफाइड. ठीक है. अब ये पेपर ए और पेपर बी कौन सा होता है? पेपर ए इज बेसिकली यू हैव टू चूज वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज जो आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आपको एक इंडियन लैंग्वेज सिलेक्टेड करनी है. वन इंडियन लैंग्वेज हैज टू बी सिलेक्टेड बेसिकली बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज दैट आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डायरेक्ट यही कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस का जिक्र गया है, सो वन ऑफ दैट लैंग्वेजेस यू हैव टू चूज, और आपको उस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा वो पेपर ए. सिंपली इज दैट, एंड दिस इज क्वालिफाइंग. तो दे विल चेक बेसिकली दे नो द लैंग्वेज और नॉट. सिंपल, दैट इज द फंडा. रेस्ट ठीक है. एंड अल्टीमेटली इफ यू टॉक अबाउट पेपर बी, पेपर 1 बीइंग द लैंग्वेज पेपर, पेपर बी is simply the English paper.
10th क्लास का लेवल होता है, समझो आप दोनों का, ठीक है, 10th क्लास का लेवल होता है इंग्लिश का भी और लैंग्वेज का भी, और दोनों क्वालिफाइंग होते हैं, दोनों में आपको 25% स्कोर करना होता है, और ये मेरिट के लिए काउंट नहीं होते हैं, याद रखिएगा। 300 नंबर के दोनों होते हैं, and they won't be counted for the merit. Okay, fine. Now once this paper is done, once paper A and paper B is done, then you have the paper, those papers which should be counted for the merit. Those papers which be counted for the merit, paper 1 जो इसमें है, paper 1 would be the essay paper of 250 marks. अब ये ऐसे पेपर जो है, ये समझो आप पेपर 1 होता है, उसके बाद यू विल बी हैविंग द पेपर 2. नाउ व्हाट इज द पेपर 2? पेपर 2 वुड बी द GS1. अभी हमने वहां पे देखा था जनरल स्टडीज, सेम वाली बात जो हमने प्रीलिम्स में देखा था, मगर यहां पे GS1 जो है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट कंपोनेंट्स खोल के रखे गए हैं. लाइक इसमें GS1 टॉक्स अबाउट इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. सो इफ वी राइट ओवर हियर, पेपर 1 टॉक्स अबाउट इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर प्लस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. ठीक है, अगर वैसे देखेंगे, these are the same GS components which were in the paper, which were in the preliminary examination, but these GS components are here in a more elaborative manner. अब यहां पे वो कंपोनेंट GS के साथ 8 जो थे, अब वो बिल्कुल खोल के 14 कंपोनेंट्स टोटल बन जाते हैं हमारे 4 GS को लेके, जो आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 बनाता है, यानी कि GS1, GS2, GS3, GS4. All right, so if we talk about paper 2, that is the GS1, that basically that GS1, sorry, I have written it here, it's not here, basically it's GS1 is here, this is GS1. All right, okay, this is essay is here, and GS1 is basically Indian heritage, culture, and this is history and geography of the world and society, and this also includes 250 marks. Okay, now GS1 के बाद ये जो आपका पेपर 2 बन जाता है, then you have the paper 3. Just keep on counting the paper. 1, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5वां पेपर. Now we have the paper 3, which is basically the 5th paper. Now this constitutes of GS2, and GS2 में here basically they will talk about the governance, about the constitution, about the polity, about the social justice, international relations. So if we write here the polity, the constitution, the governance, the social justice and the international relations. Now again that in preliminary there was written polity, हम polity पढ़ते थे. अब यहाँ पे polity में आपको governance भी देखना है डिटेल में, constitution भी पढ़ना है, और यहाँ पे आपको social justice के बारे में देखना है, social justice पढ़ना है, that's one of the component becoming here, and the international relations, how the countries are maintaining the relationships with the countries, international relations, diplomacy, diplomatic relations, क्योंकि ये सब requirement है, ये सब डिमांड है एक एडमिनिस्ट्रेटर की. अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हो, यू शुड बी अवेयर ऑफ द इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यू शुड बी अवेयर व्हाट गवर्नेंस, हाउ गवर्नेंस ऑपरेट्स, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ द व्हाट द पॉलिटी सेज, व्हाट द पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, व्हाट इट सेज, व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द आर्टिकल्स, व्हाट आर द शेड्यूल्स, व्हाट इज द अमेंडमेंट. ये सब चीजें हमको इसमें पढ़ना है, सो दैट कल को फिर से वही बात, वंस यू आर एन पोटेंशियल ब्यूरोक्रेट, आप कुर्सी पे बैठे हो, यू आर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और वट एवर पोटेंशियल ऑफिसर you are, you should be aware of all these news, laws, articles, everything. ठीक है, that is what basically exam is framed out of, that is what basically syllabus is carved in such a way कि आपको सब चीजें पता हो, आप उस ओहदे पर पहुंचे हो, उस ओहदे पे बैठे हो, आपको सब चीजों का इल्म हो, आपको सब चीजों को पता हो कैसे क्या होता है एंड क्या हो रहा है, then you have to work accordingly, right? So these are the conditions, prerequisite demands कि ये चीजें आपको जाननी है, पढ़नी है अपनी एग्जामिनेशन में. Again, general studies, everybody can study, these are general studies, and the eligibility again is graduation, simple. ठीक है, so now if we talk about paper 4, that becomes general studies 3. general studies में अब देखो, अब पहले में ऐसे आपने लिखा जो किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, एक भी टॉपिक हो सकता है, यू हैव टू राइट ऐसे, एंड ऐसे वुड बी ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे कैन बी ऑन द पॉलिटी, ऐसे कैन बी ऑन द गवर्नेंस, एक फेडरलिज्म पे था, कैपिटलिज्म पे था, क्रोनी कैपिटलिज्म, किसी भी टॉपिक पे एक ऐसे आया जो आपने लिखना है 250 नंबर पे. ठीक है, उसके बाद आप जीएस पे जाओगे, सो इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, कल्चर पढ़ोगे, यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दिस एंड नो ऑल दिस थिंग्स. उसके बाद वंस यू स्टडी द GS2, एक अलग ही कंपोनेंट्स आपको इसमें देखने हैं. GS3 डिमांड्स नाउ
different approach, different components have to be studied. You have to learn about the technology, you have to learn about the economic development, यानी कि इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या होता है इकोनॉमी, कैसे होती है इकोनॉमी, कैसे चलती है इकोनॉमी, व्हाट इज बेसिकली द माइक्रो मैक्रो, व्हाट हैज बीन हैपनिंग, व्हाट इज व्हाई इकोनॉमी इज बेसिकली इन ऑन अ डिबैकल, क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, जीडीपी कैसे ऑपरेट हो, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, मेजर्स क्या है, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ऑल दीज फैक्टर्स यू हैव टू स्टडी. व्हाट आर द फैक्टर्स वेयर द करंट डिक्लाइन इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई. सो ऑल दीज फैक्टर्स यू हैव टू study in the economic development, Indian economy, very interesting component. ठीक है. So once you are done with this financial wealth, once you study the science of the wealth, basically as called by Adam Smith, economy is the science of the wealth. So it's about the resources, the needs, the ends. Once you learn about all these things, economic development, then you have the very major component जिसने basically which has gained a lot of importance and basically a momentum in the last 4, 5, 6 years. So many questions are being asked from this component, that is basically biodiversity, environment and disaster management. So biodiversity, environment एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये पूरा जो कंपोनेंट है दिस कम्स अंडर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. ठीक है. अब बायोडाइवर्सिटी पढ़ना, एनवायरनमेंट को पढ़ना, डिजास्टर होनी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको कंजर्व कैसे करेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, स्पीशी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन है, कुछ करंट पोर्शन है, ये सब पढ़ने का एक बिल्कुल अलग अप्रोच है. ये सब पढ़ना क्यों यूपीएससी ने रखा है, बिकॉज इन द लास्ट वी कैन से इन द लास्ट डिकेड, 1-2 डिकेड्स में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, दिस हैज बिकम वेरी वी कैन से अ मेजर prominent happening around the globe, which is impacting the diplomacy, the relations, the economy, whole security, everything is getting determined or impacting by these factors of the degrading environment. इंसान क्या कर रहा है environment को degrade करने के लिए, pollution, this is basically such a direct impact on the livelihoods, on the living of the people, on the basically on the survival of the people. So इसको लेके क्या करना है, इसका बहुत बड़ा रोल है. मेंस में भी GS3 है, this is the GS3, इसमें 50 नंबर का पोर्शन, 4 से 5 क्वेश्चंस आने हैं. And basically if you talk about prelims, here they will ask you about almost 15 questions, 16 questions nowadays in this component. So environment, ecology, disaster management becomes very important. And after that, इसके बाद you have finally security. सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, कैसे एक कंट्री की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इंडिया इज डूइंग विद इट्स बॉर्डरिंग स्टेट्स, व्हाट इज द इन्फिल्ट्रेशन, व्हाट आर द लॉज, व्हाट आर द डिफरेंट वी कैन से सिक्योरिटी लॉज, व्हाट इज द डिफेंस डूइंग, व्हाट आर द साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आर द अदर सिक्योरिटी थिंग्स दैट इंडिया इज फेसिंग, व्हाट आर सिक्योरिटी थ्रेट्स, साइबर क्राइम क्या है, ये सब चीजें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिक्योरिटी के लेके क्या है, ये सब चीजें हम इस सिक्योरिटी को लेके पढ़ते हैं इस कंपोनेंट में. सो देयर आर इन, इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली GS1, GS2, GS3, ये सारे वही कंपोनेंट्स हैं जो जनरल स्टडीज में ही पढ़ने होते हैं, बट मोर कंप्रहेंसिव एंड डिटेल्ड एनालिसिस यहां पे करना होता है, और आंसर जो लिखना है वो सब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव वे में आपको लिखना पड़ेगा. और देन यू हैव द अल्टीमेटली पेपर 5, दैट इज योर GS4. Now after studying GS, whole GS components in a very detailed assessment करके इनको आप पढ़ते हो, basically you have to study at the end GS4 that talks about the ethics, integrity and एप्टीट्यूड. नाउ एथिक्स इज व्हाट, क्यों पढ़ना पड़ता है एक आईएएस ऑफिसर को, जब आप एक ओहदे पे, एक मकाम पे बैठे हो, आपके सामने क्राइम भी हो रहा है, आपको जस्टिस का भी ध्यान रखना है, आपको बेसिकली किसी के फेवर में नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू डू फेवरिज्म, नेपोटिज्म, यू हैव टू बिकम सोशली मतलब जस्टिफाइड, आपको सोशल जस्टिस करना है. कैसे करोगे आप, कैसे फैसले लोगे, क्या एथिक्स का रोल है, व्हाट इज द मॉरल्स, आपके पास केस स्टडीज होते हैं, उनको पढ़ना है. कैसे एक सपोज यू आर एन आप एसपी हो एक जिले के, डिस्ट्रिक्ट के, आपके सामने कोई केस आ गया एंड इसमें वुमेन इन्वॉल्व है, सो इसमें ओल्ड पीपल इन्वॉल्व है, सो विल यू यूज एथिक्स, हाउ विल यू यूज तमीज की बात, कैसे आप पेश आओगे, कैसे फैसले लोगे, मॉरल्स को, अच्छाई को, बुराई को, ये सब चीजें इसमें हम पढ़ते हैं. एथिक्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू स्पेशली होल्ड द टॉप की पोजीशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफ द बेसिकली दिस पुलिस सिस्टम और एनी ऑफ द टॉप लेवल सर्विस. ठीक है. सो एथिक्स पढ़ना भी बहुत लाजमी, बहुत जरूरी हो जाता है. एंड अल्टीमेटली एट द एंड इतने सारे पेपर्स के बाद 1 2 3 4 5 6 7 पेपर के बाद यू हैव द 2 पेपर्स एट द एंड, एंड दीज 2 पेपर्स यू हैव टू चूज एज एन ऑप्शनल. एक ही ऑप्शनल है लेकिन उसके 2 पेपर होंगे, यानी कि पेपर 6 प्लस
paper 7. This should be chosen as an optional. Optional plays a key role in securing the good rank in the examination of the UPSC. आप कोई भी optional ले सकते हो. The list that has been provided by the UPSC, 26 options, basically 25 plus 1 options as in literature. आप कोई भी ले सकते हो and you can choose the optionals if you are very well. आपके graduation में कोई आपका subject core subject रहा हो, आपके masters में रहा, किसी का कोई भी subject रहता है as an optional, वो उसको ले सकता है, उसके बारे में पढ़ सकता है. Questions will be asked out of that examination, whether be it geography, anthropology, economic and commerce, or it can be animal husbandry and management. It can be anything. It can be anything whatever has been prescribed by the UPSC. You can choose any one optional और उसके बेस पर optional subject paper 1 होगा, optional subject paper 2 होगा और दोनों के 250 नंबर होंगे. So total मिला के if we talk about essay के 250 and all these 250 के GS के 4 and paper 6 और paper 7 के 250 plus 250, so these become 1750 marks. 1750 नंबर का ये मेंस एग्जामिनेशन बनता है. These 300 aren't counted at all. ठीक है, so मेरिट में जाने के लिए these 1750 marks are counted. So this is how the mains examinations is framed and it's carved, and this is how the syllabus has been given by the UPSC. अब इसके लिए क्या अप्रोच है, इसके लिए सिलेबस डिटेल्ड एनालिसिस क्या है, that would be discussed in the next topic. बट यहां पे उसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे. क्या सिलेबस डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, हर किसी कंपोनेंट का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और अप्रोच क्या होना चाहिए हर किसी सिलेबस के लिए. ठीक है, हर किसी कंपोनेंट के लिए. बट आफ्टर दिस, वंस यू आर डन विद द मेंस एंड दोज स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई द मेंस एग्जामिनेशन, सपोज देयर आर 4,000 students who are qualified this mains examination, they are called for the last stage that is called as interview. इंटरव्यू क्या होता है? एक पर्सनल लेवल पे, एक सिक्योर, एक पर्सनल लेवल पे आपके सामने एक बोर्ड बैठा होगा जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी होता है, जिसमें बेसिकली आपके ऑप्शनल का एक स्पेशलाइज्ड पर्सन भी होता है. उसमें 3-4 लोग ऐसे होते हैं which will basically ask you the questions. No superficial knowledge will work there, no faking will work there. Just pure knowledge and pure you, pure honesty would work there, because वो आपकी अंतड़ियां बाहर निकाल देते हैं सवाल पूछ के. They will know the real you by what you answer exactly. So you should have really good command. You should be the honest over there. You should use no superficial knowledge. उनको बेवकूफ बनाना नहीं होता, ना ही बना सकते हो, because they are the basically the we can say they are the highest level authorities of their particular dominions. They are the best of the way they are. So उनके सामने जाके they ask you the questions, and the questions can be somehow related to your birthplace, to your name, to your society, to your community, to the current happenings in the world. What क्या हो रहा है, क्या आपकी suggestions पूछेंगे, वो क्या आप सोचते हो चीजों के बारे में, and ethics के question होंगे. Suppose case study का आपके सामने रखेंगे, and they will ask you how you behave. They will see your patience, and this interview goes for 20, 25, 30 minutes, and ultimately at the end students are taken out from the interview also. और इंटरव्यू में बेसिकली इंटरव्यू में भी आपके होते हैं, इंटरव्यू इज ऑफ and basically ultimately you have 2025 marks is the total score which you have. 2025 is the total score you have. 2025 is the total score which you have at the end of the examination. तो इस बेसिस यहाँ से this is the final score. तो इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके and what we call as this पूरे मेंस के मार्क्स एंड करके they become 2025, and at the end this is the final score and the merit is decided out of that score. So this is how the structure of the examination is all about. This is basically how this examination works, how they conduct the examination, the vacancies, the approach, the subject. ये सब बेसिक चीजें हमने आपको बताई इस टोटल वीडियो में. पहला पार्ट और दूसरा पार्ट था ये. Now in the other lecture we will discuss basically the detailed syllabus of the syllabus of the UPSC. क्या syllabus को क्या approach, GS को प्री के लिए क्या approach हमको यूज करना है, जीएस के सीसेट के लिए हमको क्या अप्रोच यूज करना है, मेंस के कंपोनेंट्स अगर कोई ले रहा है उसको हम क्या अप्रोच, उसमें हम क्या सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, हमारी बुक्स कौन सी होनी चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीईआरटी, हाउ इंपॉर्टेंट इज टू रीड हिंदू न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर. These all other things would be decided, would be discussed in the upcoming videos. So thank you students, God bless you.